Good morning, everybody. Uh, Today, I'm starting the topic, the second half of the Unit 5, that is elimination and shading. Okay, and there are few important topics regarding this concept that we would study further, that are elimination model. So there are two or three kinds of elimination model that you have to study that keep coming in your university examination. So we will cover that. But before understanding those topics, we must understand the concept behind these elimination model. What is the meaning of elimination? What is the meaning of shading? Why do we require elimination model? Why do we need this concept? So basically, we will study that. So in this topic, uh, we will be dealing with these terms, that shading, elimination and intensity. तो अगर मैं इसकी सिर्फ literal meaning की बात करूं, तो you know the meaning of shading. That means shading represents the darkness or a lightness on an object. Okay, so किसी object का कोई part कितना ज़्यादा dark है या light है, उस चीज को हम shading कहते हैं. Okay, elimination क्या हो गया? That is the brightness. Okay, how illuminated an object is looking from a certain uh, viewing direction, that is elimination. And third is intensity का जो literal meaning होता है, basically वो होता है कि कितना effect पड़ रहा है basically light का. तो these are the terms that are used interchangeably because अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैलकुलेट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की, तो ही हम पता कर सकते हैं कि उसको कौन सा पार्ट शेडेड है, कौन सा पार्ट इल्यूमिनेटेड है, कितना ब्राइट है, कितना डार्क है. सो दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, एंड whether it is shaded or illuminated, that depends upon the intensity of light. ओके, बिकॉज हम ये जो पूरा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपका इन कंटेक्स्ट ऑफ लाइफ. तो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि व्हाई डू वी नीड दिस कंसेप्ट. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिएटिंग अ वर्चुअल रियलिटी ऑफ अ रियल सीन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग. पहली चीज, मॉडलिंग एंड पोजिशनिंग ऑफ सेवरल कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट. इस पे मैं बाद में आती हूँ, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाई डू वी नीड दिस. अभी तक आपने जितना भी पढ़ा इन ऑल 4.5 units, so you have seen the transformations processes, okay, the clipping processes, you have seen the projections and the visible surface detection. तो आपने ये सारी चीजें प्रोसेसेस देख ली, बैकलिस्ट रिमूवल देख लिया. इसके बाद आपको एक सीन जो है आप जनरेट कर सकते हो, लेकिन वो सीन रियल तब तक नहीं लगेगा जब तक आप हर एक ऑब्जेक्ट का, दैट मीन्स in an entire thing, imagine a real world scenario that you want to generate using computer graphics packages, and you have applied all these processes such as projection, you have projected it, you have applied visual surface detection and everything, but it will still not look real, or it will not look very real unless you will consider or you will model the illumination part. That means effect of light in a real world. अब आप इमेजिन करिए, आप रियल वर्ल्ड में जो कुछ भी देखते हो, तो आप जिस चीज को भी देखते हो वो ऐसे देख पाते हो कि अगर मैं सिर्फ आउटडोर्स की बात कर रही हूँ, अगर आप बाहर है, धूप में है, तो आप किसी भी चीज को देख रहे हैं तो वो कैसे देख पाते हो, बिकॉज जो सनलाइट होती है वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, और ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होने के बाद द पार्ट ऑफ द sunlight would be observed by the object surface and part of it would be reflected on your eyes. Okay, so आप जहां से भी इसको देख रहे होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, उससे जो भी लाइट रिफ्लेक्ट हुई आपके रेटिना पे पड़ती है, तो फिर आपको वो चीज दिखाई पड़ती है. ओके, तो आपको वो डिफरेंट व्यूइंग डायरेक्शन से देखने पे आपको किसी ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट डार्क दिखेगा, कोई पार्ट ज्यादा ब्राइट दिखेगा. ये सारी चीजें होती हैं. टू अचीव दैट थिंग in computer graphics, and I'm not talking about the image capturing, that is a different process. So digital camera से जब आप कोई image लेते हो, it involves the completely different processes. Okay, I'm talking about here the generation of a real world or virtual reality using the computer graphics. Okay, so वहां पर
आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिफरेंट लाइटिंग्स का किसी एक सिनेरियो के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अभी विजुअल सरफेस डिटेक्शन एल्गोरिदम पढ़ाई, उसमें आपकी जी बफर एल्गोरिदम थी। तो वहां पर क्या कंसेप्ट था आपका कि देयर आर सो मेनी सरफेसेस, जिनमें से जो सरफेसेस था वो आपके ओपेक थे, और इफ देयर इज अ सरफेस दैट इज एक्लूडिंग द व्यू ऑफ अदर सरफेस, इन दैट केस हमें एक रियलिस्टिक व्यू क्रिएट करना होता था, जहां पर जो ऑब्जेक्ट, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने है, तो जितना पोर्शन वो हाइड करेगा आपका जो फ्रंट ऑब्जेक्ट है, दूसरे ऑब्जेक्ट का, अपने पीछे वाले ऑब्जेक्ट का जितना भी पोर्शन एक्लूड करेगा, वो सारा पोर्शन हमें रेंडर नहीं करना है। ठीक है, तो हम वहां पर क्या करते थे कि the pixel that is, or we can say that the surface that is closest to the projection plane, depending upon the depth value of the particular surface or the particular pixel on the surface, we eliminate that particular surface. So basically हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम जिस भी पिक्सल को एलिमिनेट करते हैं उसकी हम इंटेंसिटी को रेंडर कर देते हैं। तो ये इंटेंसिटी क्या चीज है? बेसिकली द पिक्सल विल रिफ्लेक्ट सम लाइट। ओके, द पिक्सल विल रिफ्लेक्ट सम लाइट, वो चीज आपको यहाँ पर मॉडल करनी है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ लाइट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स जो इल्यूमिनेशन और शेडिंग की प्रोसेस है, this is considered a very complex process even in computer graphics, because if you imagine, अगर आप कोई भी रियल लाइफ में कोई सीन देख रहे हो, ठीक है ना, तो वहां पर किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर आप देख रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल सरफेस की मैं बात करूं तो किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है? वेरी फर्स्ट थिंग वुड बी अ लाइट सोर्स। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो किस लाइट पे देख रहे हैं। आर वी टॉकिंग अबाउट अ सिंगल लाइट सोर्स और मल्टीपल लाइट सोर्स? अगर हम किसी एक रूम के अंदर बात कर रहे हैं, देयर मे बी मल्टीपल लाइट्स, एंड इनसाइड दैट पर्टिकुलर रूम देयर माइट बी मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देयर माइट बी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, और उस ऑब्जेक्ट पे सपोज 3-4 लाइट सोर्सेस का इफेक्ट पड़ रहा है, तो वी हैव टू कंसीडर, वी हैव टू कैप्चर दैट इफेक्ट to achieve the virtual realism. So that is one challenge. Second would be the surface property. तो कोई जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से दिखेगा आपको, कितना ज्यादा डार्क दिखेगा, कितना ज्यादा इल्यूमिनेटेड दिखेगा, कितना ज्यादा शेडेड दिखेगा, ये इस चीज पे भी डिपेंड करेगा आपका कि हम किस टाइप के सरफेस की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, क्या हम किसी रफ सरफेस की बात कर रहे हैं दैट हैज सम टेक्सचर, एक मैट सरफेस है। दूसरा हो गया क्या सरफेस आपका ग्लॉसी है, ब्राइट है। ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई डार्क सरफेस हो गया, तो डार्क सरफेस पे यू नो दैट इट विल ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द लाइट एंड इट विल रिफ्लेक्ट वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ लाइट। ओके, तो बेसिकली तब वो चीज आपको डार्क दिखाई पड़ती है। और अगर कोई ग्लॉसी सरफेस है या फिर कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट सा सरफेस है, इन दैट केस फॉर एग्जांपल आपका एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, तो एल्यूमिनियम फॉइल हो गया या फिर मिरर हो गया, so it will reflect almost all the light that will fall upon them. So जितनी भी लाइट इस पे पड़ेगी ऑलमोस्ट सारे रिफ्लेक्ट करेगा और बहुत कम ऑब्जर्व करेगा, तब वो चीज आपको ज्यादा ब्राइट दिखाई पड़ेगी। तो सरफेस की प्रॉपर्टीज पे भी ये बहुत ज्यादा इफेक्ट फर्क पड़ता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखाई पड़ेगा। तीसरी चीज हो गई आपकी व्यूइंग डायरेक्शन। ऑब्वियसली आपका व्यूइंग डायरेक्शन भी बहुत मैटर करेगा कि आप किधर से देख रहे हो किसी चीज को। आपके जो व्यूइंग एंगल से कोई एक पर्टिकुलर साइड आपको किसी एक व्यूइंग एंगल से ब्राइट दिख सकता है, वही किसी दूसरे व्यूइंग एंगल से आपको थोड़ा लाइट दिख सकता है, तो दैट वुड बी कंसीडर्ड। फोर्थ वुड बी द डायरेक्शन ऑफ लाइट सोर्स। ठीक है, कि लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट पे किस डायरेक्शन से पड़ रही है, तो दैट वुड बी अ फैक्टर टू कंसीडर। ऑल्सो द कलर ऑफ द सर्फेसेस एंड लाइट, कलर ऑफ द लाइट्स। एग्जाम्पल, आप किसी ब्लैक या ब्लू सरफेस को देख रहे हो, या फिर आप लेट्स सपोज आप किसी रेड और ब्लू सरफेस को येलो लाइट में देख रहे हो, एंड you are looking at the same surface, same color surfaces, for example red and blue surfaces in yellow light, so the effect would be different. And the most challenging one would be
इफेक्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। अब इसका क्या मतलब है इफेक्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन? इसका मतलब ये होता है कि जो सपोज आप किसी एक रूम में हो, ठीक है, वहां पर लाइट आ रही है ना, तो लाइट आ रही है और वहां पे 5-6 ऑब्जेक्ट प्लेस है ना, और उनकी प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपकी हो रखी है। तो एक लाइट आई फ्रॉम द लाइट सोर्स and it will incident on object 1, and let's suppose this object is a glossy one. Okay, so it will reflect some light. Okay, it will reflect some light, and that reflected light would be incident on the object 2. So now object 2 is experiencing the light from the direct light source, also the light that has been reflected by object 1. Okay, so अगर आपको object 2 के किसी एक पिक्सल का रिफ्लेक्शन निकालना होगा तो वहां पर इंटेंसिटी हो जाएगी आपकी कमिंग फ्रॉम द डायरेक्ट लाइट सोर्स, उसकी वजह से जो रिफ्लेक्ट हो रही है, प्लस जो ऑब्जेक्ट 1 से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। इस तरीके से सोचिए अगर आपके पास मल्टीपल मिलियंस ऑफ सर्फेसेस हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स सीन के अंदर, यू में हैव मिलियंस ऑफ सर्फेसेस एंड बिलियन ऑफ लाइट सोर्सेस, तो मल्टीपल लाइट सोर्सेस से अलग अलग ऑब्जेक्ट सरफेसेस पे लाइट्स पड़ रही है, और वो अलग अलग ऑब्जेक्ट सरफेसेस जो हैं वो दूसरे सरफेसेस को भी लाइट रिफ्लेक्ट करके दे रहे हैं। तो ये जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, ठीक है, दैट वुड बी वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टू मॉडल, लेकिन आपको रियलिज्म इसी चीज से मिलता है ना, तो दैट वुड बी वेरी टफ पार्ट। तो इसीलिए कहते हैं कि जो इल्यूमिनेशन एंड शेडिंग है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सो वी विल स्टडी वन बाय वन दैट हाउ टू मॉडल दीज प्रॉब्लम्स, हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस यूजिंग द कंप्यूटर ग्राफिक्स। बिकॉज अगर आप किसी डिजिटल कैमरे से कोई इमेज लेते हैं, तब भी आप क्या कर रहे हो कि आपके सामने जो सीन है, उस सीन में जितनी भी लाइट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उन सब पे लाइट्स पड़ रही हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लाइट रिफ्लेक्ट करके व्यूअर की आईज पे डाल रहे हैं, प्लस उसकी जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ऑब्जेक्ट वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे भी पड़ रही है। So you are surrounded by infinite number of light rays. How would you model that? How would you capture that? That's very impossible. And जब आप डिजिटल कैमरा से पिक्चर लेते हैं तो आप तब भी एक सबसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि रेंज होती है डिजिटल कैमरा में भी, जो आपके पास जो आर्टिफिशियल लेंस है उससे आपको देखने की एक लिमिट होती है कि आप कितनी दूर तक, मतलब कितने एरिया तक देख सकते हैं। इवन इन रियल लाइफ आप एक सर्टेन लिमिटेशन तक ही देख सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल कैमरा में इट वुड बी अ वेरी क्रूड अप्रोक्सीमेशन, दैट मीन्स इट इज ऑलमोस्ट real, okay, but in computer graphics it is almost impossible. It is exactly impossible to achieve the 100% realism. So we have so many algorithms or so many complex formulation to achieve as realistic as possible. So the scientists in the field of virtual realism or virtual reality and visual realism and computer graphics are working to generate that realism. This is not possible, और यही रीजन है कि जब आप किसी चीज को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू जो चीजें देखते हो, आपको इजीली पता चल जाती है कि ये रियलिस्टिक सीन नहीं है, दिस इज द सीन दैट इज जनरेटेड बाय द ग्राफिक्स, बिकॉज 100% realism is not possible. You cannot capture all these factors जो कि मैंने भी आपको बताया कि सारे light sources और सब surfaces, because we are talking about millions and millions of surfaces. We don't know किस viewing direction से देखा जा रहा है, we don't know हम किस light source किस direction पे, तो this is very this makes it all very tough. So we try to make it as real as possible, but not 100%. Now, moving to this, creating a virtual reality of a real scene involves modeling and positioning of several complex objects. ये पहला स्टेप होता है आपका। बेसिकली हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स पाइपलाइनिंग में जो इमेज जनरेशन का जो प्रोसेस होता है, जनरेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वहां पे पहली चीज होती है मॉडलिंग एंड पोजिशनिंग ऑफ सेवरल कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको बता रखा है कि मतलब बेसिकली किसी
कोई भी सीन अगर आप कंप्यूटर ग्राफिक्स में बना रहे हो तो उसमें जितने भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स आप मॉडल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग से बनाते हैं, देन यू प्लेस देम, यू परफॉर्म सम ट्रांसफॉर्मेशन, यू नो द ड्रिल. ओके. Second, determining the visible surface detection, project the view with respect to viewer. Okay, so viewer के viewing direction के according हम वहां पर visual surface detection करते हैं, back face remove करते हैं. That is other step. Third, obtain shading using surface normal, surface properties and light sources. देखिए मैंने अभी आपको बता दिया कि क्या क्या हमारे पास complexities हो सकती हैं किसी भी सिनेरियो के अंदर इल्यूमिनेशन और शेडिंग को जनरेट करने के लिए, उसका इफेक्ट जनरेट करने के लिए. तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ऑब्टेन शेडिंग. अब आप इसे शेडिंग बोल लो, इल्यूमिनेशन बोल दो, इंटेंसिटी बोल दो, कुछ भी बोल दो, सब चीजों का मतलब एक ही है. इल्यूमिनेशन मॉडल, शेडिंग मॉडल, लाइटनिंग मॉडल, कुछ भी बोल ले, सबका मतलब एक ही है. ठीक है. सो वी कैन ऑब्टेन शेडिंग मॉडल यूजिंग सरफेस नॉर्मल्स. अभी हमने इस पे डिस्कशन नहीं किया, अभी हम इस पे करेंगे. तो जैसे मैंने आपको बैकफेस डिटेक्शन में बताया था कि एवरी सरफेस हैज normal vector, so we will use that surface normal here when we talk mathematically about this topic. Okay. Then surface property, as I've told you, whether we are dealing with the glossy surfaces, grainy surfaces, so it depends on that, and light sources. Okay, because सारा खेल आपका lights का ही है. फोर्थ, ऑब्टेन शैडो फ्रॉम occlusion. ये इसके बाद का पार्ट है, मतलब जब हम शेडिंग रिप्रेजेंट कर लेंगे उसके बाद हम करेंगे ऑब्टेन शैडोज फ्रॉम occlusion, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अचीव द रियलिज्म. इन रियल लाइफ यू नो दैट शैडोज प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल. तो लाइट्स होती हैं, अगर डिफरेंट आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपको वहां पर शैडोज भी मिलेंगी. तो इन सिनेरियोज में हमारी शैडोज आएंगी. उन सब चीजों को प्रोजेक्ट करना ही हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो कि हमें अभी नहीं देखना है. तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा ऑब्टेन शेडिंग यूजिंग सरफेस नॉर्मल, सरफेस प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा. नाउ इन अ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट, जो मैंने आपको अभी बताया वही सब मैं पढ़ने वाली हूँ. इन अ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट लाइट रेज फ्लो इन ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डायरेक्शन. ये लाइट रेज कौन सी है? जो एक किसी भी एक रूम की मैं बात करूं तो वहां पर आपकी लाइट सोर्स है, सपोज सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट आ रही है. अब वो सनलाइट जिन ऑब्जेक्ट सरफेसेस पे पड़ रही है वो ऑब्जेक्ट सरफेसेस भी रिफ्लेक्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट सरफेसेस को वो उस पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लाइट्स को. तो उन सरफेसेस पे इसका इफेक्ट आएगा, है ना. तो ये चीज है. सम डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्सेस एंड सम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेसेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, है ना. यही बात बोली मैंने कि या तो डायरेक्ट आपको लाइट सोर्स से लाइट आ रही होगी, या फिर लाइट सोर्स पड़ रही है ऑब्जेक्ट 1 पे और ऑब्जेक्ट 1 से लाइट रिफ्लेक्ट होकर पड़ रही है ऑब्जेक्ट 2 पे, ऑब्जेक्ट 2 से रिफ्लेक्ट होकर पड़ रही है ऑब्जेक्ट 3 पे, और वापस ऑब्जेक्ट 3 से रिफ्लेक्ट होकर के आ सकते हैं, हो सकता है वापस ऑब्जेक्ट 1 पे. तो इस तरीके से वी आर surrounded with the infinite number of light rays. To accurately construct a picture of the real world scene by a computer graphics, we have to simulate the illumination process and be able to calculate the shading or illumination at each point of each surface in our scene. So अगर हमें एक रियलिस्टिक सीन को कैप्चर करना है इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारी जितनी भी सारी प्रोसेस होती है इसको हमें सिमुलेट करना पड़ेगा इफेक्ट टू जनरेट द प्रॉपर illumination effect of every point of each surface in our scene. So you can imagine how computationally this is very complex. Often an approximated view is generated using many complex formulation and algorithms. So we can generate an approximated view, not the exact. We can often approximate view in is generated using many complex formulations and algorithms. Okay, so many mathematical calculations and equations are involved here. बहुत सारे आपके ऑप्टिक फिजिक्स के कंसेप्ट्स यहाँ पे यूज होने वाले. ओके, नाउ illumination model. Illumination model आपका क्या होता है? Illumination models are used to calculate the intensity of light that is reflected by given on a surface. तो जो भी कहानी मैंने आपको अभी तक बताई थी कि हमें क्या करना है, हमें किसी पिक्सल पे पड़ने पिक्सल जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको ही कैलकुलेट करना है, उस इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है. तो उस इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए we require illumination model. The important components to make an illumination model are
ना आपको यहाँ पर ना 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है कि किसी भी इल्यूमिनेशन मॉडल में ना 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली आपकी डिफ्यूज इल्यूमिनेशन, ऑब्लिक एम्बिएंट लाइन। ये दोनों जो चीजें है ना ये बहुत ही ज्यादा इंटरलिंक्ड है। आई विल डिस्कस इट फर्दर। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। तो हर टाइप का जो इल्यूमिनेशन मॉडल जो हम पढ़ने वाले हैं ना, दैट वुड इन्वॉल्व दीज 3 कंपोनेंट्स, ambient light or ambient light or diffuse illumination. Second, diffuse reflection. Third is specular reflection. So today we will cover ambient light and diffuse reflection, and in next lecture I would cover specular reflection. Let's move ahead. Object illuminates on the basis of the following property. बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो इल्यूमिनेट होता है या हमें दिखाई पड़ता है, ज्यादा रियलिस्टिक दिखाई पड़ता है कि उस पे जो लाइट है, सपोज कोई एप्पल अगर आप देख रहे हो तो एप्पल अगर आप देख रहे हो तो एक सर्टेन एंगल से या आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपको एप्पल का एक पार्ट कुछ इल्यूमिनेटेड दिखेगा, कुछ पार्ट आपको शेडेड दिखेगा। ओके, सो टू अचीव दैट क्या क्या चीजें इफेक्ट करती है? इंटेंसिटी ऑफ द एम्बिएंट लाइट। एम्बिएंट लाइट को अभी मैं डिस्कस करूंगी फर्दर, पर अभी के लिए मैं आपको बता दूं एम्बिएंट लाइट का मतलब होता है बैकग्राउंड। ठीक है, किस बैकग्राउंड में आप देख रहे हो, तो वो हो गया टाइप ऑफ सरफेस। ऑब्वियसली जो मैं बार बार कह रही हूँ, सरफेस की प्रॉपर्टी पे, ग्लॉसी सरफेस है, डार्क सरफेस है, ग्रेनी सरफेस है, टेक्सचर्ड सरफेस है, इस पे डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट ये रिफ्लेक्ट करेगा या कितने अमाउंट ऑफ लाइट ये ऑब्जर्व करेगा, और उसी पर हमारा इल्यूमिनेशन या शेडिंग डिपेंड करता है। थर्ड, कलर ऑफ सरफेस, एज आई टोल्ड यू। ठीक है, कि येलो लाइट में आप अगर कोई ब्लू सॉरी व्हाइट लाइट में आप कोई ब्लू सरफेस देख रहे हो, ब्लैक सरफेस देख रहे हो, रेड सरफेस देख रहे हो, इस पे भी डिपेंड करेगा। कलर ऑफ लाइट सोर्स, लाइट आपकी येलो है, व्हाइट है, किस लाइटिंग में आप देख रहे हो, and others, and there would be so many factors like viewing direction, light source direction, shadows, etc. So there are so many factors. So इन सब पे आपका डिपेंड करता है illumination, और इन सब को कैप्चर करने के लिए हम ये 3 कंपोनेंट यूज करते हैं। सो आई विल डिस्कस वन बाय वन। पहली चीज होगी आपकी एम्बिएंट लाइट। ओके, एम्बिएंट लाइट क्या होता है? दिस इज द केस ऑफ डिफ्यूज, और ऊपर मैंने लिखा हुआ है इक्वल। दिस इज द केस ऑफ डिफ्यूज। द मीनिंग ऑफ डिफ्यूज इज इक्वल, नॉन डायरेक्शनल सोर्स ऑफ लाइट। This results from the effect of multiple reflection of lights coming from many surfaces present in the environment. जब मैं बात कर रही हूँ एम्बिएंट लाइट की, तो आप ये समझ लीजिए कि मैं किसी ऐसी लाइट की बात नहीं कर रही जो किसी डायरेक्ट लाइट सोर्स आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कमरे में हो और आपके कमरे में ट्यूबलाइट है, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लाइट कमिंग फ्रॉम ट्यूबलाइट, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइट that is generated due to the reflection of the objects, है ना? जो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी सीन के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जिन पे लाइट पड़ती है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट्स अगर नहीं भी हो, किसी एक एनवायरनमेंट के अंदर आपकी, जैसे अगर रूम है तो रूम के अंदर वॉल्स होंगी, सीलिंग्स होंगी, है ना, तो इन पे डायरेक्ट लाइट आपकी हर वॉल पे डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रही होगी, आप किसी एक वॉल पे ही डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, तो बाकी जगह पर आपको लाइट इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। ठीक है, या सीलिंग है, सीलिंग पे आपको डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रही है, तो सीलिंग से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के, मतलब पहले सीलिंग सॉरी लाइट सोर्स से किसी सामने वाली दीवार पे सपोज आपकी लाइट पड़ी और उसके इफेक्ट से सब जगह लाइट पड़ रही है ना, तो वो चीज होती है आपकी एम्बिएंट लाइट। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर आपको क्लियर नहीं हो तो, फॉर एग्जांपल आप अपने रूम में हो, ठीक है, एंड यू हैव अ बैल्कनी, आप अपने रूम में लाइट बंद कर दो रात को, लेट्स सपोज लाइट बंद कर दिया आपने, और देन आपने लाइट बंद करने के बाद आप जब विंडो ओपन करते हैं, कर्टन्स ओपन करते हैं, तो सपोज मूनलाइट एंटर्स इन योर रूम, ओके, सो दैट मूनलाइट will enter in your room with the equal intensity, है ना, सब जगह साथ पड़ेगी, और वो मूनलाइट जो होगी वो आपके रूम के अंदर जितनी भी सरफेसेस होंगी
उन पे पड़ेगी और उन सरफेसेस से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इट विल क्रिएट एन एम्बियंस. ओके, सो these are the light rays, infinite light rays I was talking about. So ये जो मल्टीपल मतलब एक लाइट जो आपको मून लाइट से मिल रही थी जो कि इक्वल इंटेंसिटी से आएगी पूरे रूम पे और हर एक ऑब्जेक्ट सरफेस जो होगा उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालेगा. तो दैट विल क्रिएट एन एनवायरमेंट. ओके, दैट इज नोन एज द एम्बिएंट लाइट. सो again, if we go through the definition, this is the case of diffuse, that means the equal non-directional source of light. So I am not talking about कि लाइट जो होती है मून लाइट चल रही है, जो एक इफेक्ट आपको इस रूम में दिख रहा है बाकी सारी लाइटों की वजह से जो बैकग्राउंड आपका बन गया है लाइटिंग का, उसको हम एम्बिएंट लाइट कहते हैं. दिस रिजल्ट्स from the effect of multiple reflections of light coming from many surfaces present in the environment. अभी मैंने क्लियर किया ये चीजें. Ambient light is assumed to incident equally on all surfaces from all the direction. तो ambient light जो होगी वो एक background light है, तो background light जो होगी वो that would incident with the equal amount to every surface. Okay, जैसे ये एक रूम है, ठीक है, रूम के अंदर लाइट पड़ रही है और यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. तो बिफोर इंसिडेंटिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ये जो इवन आपकी बेसिकली एम्बिएंट लाइट का मतलब यही होता है कि अगर आपका रूम की जो कुछ ऐसी चीजें जिन पर डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रही है फिर भी वो दिखाई पड़ रही है. फॉर एग्जाम्पल आपकी सीलिंग हो गई, तो सीलिंग पे आपकी डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ती मोस्टली, पर फिर भी वो आपको दिखाई पड़ती है. वो कैसे दिखाई पड़ती है? बैकग्राउंड में आपकी ऐसे हजारों सर्फेसेस हो सकते हैं जिसपे आपकी डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रही होगी लाइट सोर्स से, पर फिर भी वो आपको दिखाई पड़ती है ड्यू टू द effect of lights reflected from other million of surfaces in the scene. So even if these surfaces do not experience the direct lights from the light source, but you are still be able to see them because of the effect generated by other object surfaces. Okay, the illumination equation is now. अब ये जो चीज मैंने आपको बोली है एम्बिएंट लाइट वाली, इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी होगी कि अब हमें इस चीज को, इस इफेक्ट को जो है मॉडल करना है. बेसिकली एम्बिएंट लाइट का जो कंसेप्ट होता है इसमें हम क्या कहते हैं कि इसको अगर हमें मॉडल करना है, यानी अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो मुझे उसकी एम्बियंस लाइट को पहले कंसीडर करना है. ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट से उस ऑब्जेक्ट पे क्या फर्क पड़ रहा है, उस चीज को अगर मैं मॉडल करना चाहूँ तो उसके लिए इल्यूमिनेशन इक्वेशन क्या है? आई एम्बियंस, यहाँ पे एम भी लिखा हुआ है, आई ऑफ एम्बियंस यानी कि इंटेंसिटी ऑफ एम्बियंस लाइट इज इक्वल टू आई ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय के ऑफ ए. अब ये सब क्या है ये आप देख लीजिए. वेयर आई ए इज द इंटेंसिटी ऑफ एम्बियंट लाइट. आई एम्बियंस मतलब कि एम्बियंट लाइट की वजह से जो इंटेंसिटी जनरेट हो रही है उसकी बात यहाँ पर हो रही है. एम्बिएंट लाइट का क्या इफेक्ट है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे. एक तो आई ए, इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ एम्बिएंट लाइट, दैट इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट. अभी यहाँ पर क्या बोला मैंने आपको? मैंने ये बोला कि एम्बिएंट लाइट इज अज्यूम्ड टू इंसिडेंट इक्वली ऑन ऑल सरफेसेस फ्रॉम द डायरेक्शन. देखो लाइट सोर्स जैसे आपकी मून लाइट जो आ रही है अंदर वो इक्वल इंटेंसिटी से ही अंदर आएगी सारे ऑब्जेक्ट्स पर दिस इज नॉट 100% ट्रू. दिस कांट बी 100% ट्रू. ये भी आपका हो सकता है कि कोई एक सर्टेन एरिया जो है आपको ज्यादा इल्यूमिनेटेड लगे, किसी पे ज्यादा एम्बिएंट लाइट पड़े, किसी पे कम पड़े, पर वो इफेक्ट इतना ज्यादा माइनर होता है कि वी कैन रिजेक्ट दैट डिफरेंस टू मेक इट सिंपलर, है ना. क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमें इतनी सारी लाइट सोर्सेस को, जो इनफाइनाइट लाइट सोर्सेस, जिसकी वजह से हमारा जो एम्बियंस बन रहा है वो सब वो हम वी कांट मॉडल दैट. ओके, सो इफ वी कांट मॉडल दैट, व्हाट वी अज्यूम दैट एम्बिएंट लाइट इज कांस्टेंट फॉर एवरी अदर ऑब्जेक्ट, है ना. तो हमने इसको कांस्टेंट मान लिया है. ओके, सो आइए जो होगा वो किसी एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर एक सरफेस के लिए हमने कांस्टेंट मान लिया.
KA is the ambient reflection coefficient. Basically KA क्या है, ये काइंड ऑफ क्या कहते हैं, रेशियो है बिटवीन द लाइट रिफ्लेक्टेड एंड लाइट इंसिडेंट अपॉन अ ऑब्जेक्ट, अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। देखो ये जो है आपका इन एम्बिएंट लाइट है ना, ये सारे ऑब्जेक्ट्स पे इक्वल पड़ रहा है, तो ये व्यूइंग डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, लाइट सोर्स की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल पे। भाई अगर आपको किसी आपके रूम में, ठीक है, जो एम्बिएंट लाइट जनरेट हो रही है वो हो सकता है जो सरफेस हो गया, कोई एक सरफेस ऐसा हो गया जो कि आपका ग्लॉसी है, ठीक है। तो अगेन for darker surfaces and for the glossy surfaces the effect would be different. So ambient light also depends on the property of the material. So basically जो K है ये आपका एक फैक्टर है ambient reflection coefficient। इसका मतलब होता है कि लाइट जो कि इंसिडेंट हो रही है और लाइट जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है उसके बीच का जो रेशियो होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं K, ambient reflection coefficient, जिसको हमने नॉर्मलाइज कर दिया बिटवीन 0 एंड 1। ओके, जीरो का मतलब क्या हो गया, जीरो का मतलब हो गया कि जो आपका रेशियो है, मतलब लाइट रिफ्लेक्टेड अपॉन लाइट इंसिडेंट, जीरो का मतलब हो गया आपका सॉरी 1 हो गया, यानी कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट आपका बराबर हो गया है ना। नाउ डिफ्यूज इल्यूमिनेशन, सेकंड थिंग इज डिफ्यूज इल्यूमिनेशन। सो अभी मैंने आपको फर्स्ट हेडिंग में लिखा था डिफ्यूज इल्यूमिनेशन बोलो आप या फिर आप एम्बिएंट लाइट बोलो, एक ही मतलब है। तो मतलब एक ही है, एम्बिएंट लाइट की वजह से हमें डिफ्यूज इल्यूमिनेशन जो होता है वो एक्सपीरियंस होता है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया आपको कि लाइट सोर्स से लाइट पड़ी इस ऑब्जेक्ट पर और इस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस सरफेस पे पड़ी, तो ये जो इफेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है ये सरफेस, इस पे क्या हो रहा है कि इसकी हो सकता है इसकी लाइट पड़े या ना भी पड़े। सपोज ये एक ऐसा सरफेस है, जैसे मैंने अभी आपको वॉल का या सीलिंग का एग्जांपल दिया, इस पे डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रही है बट किसी और ऑब्जेक्ट की लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इस पे पड़ रही है, तो ये जो इस टाइप का इल्यूमिनेशन जनरेट करता है इसको हम कहते हैं डिफ्यूज इल्यूमिनेशन। और ऑब्जेक्ट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट which does not come from any particular light source but comes from all direction, i.e. ambient light। यानी कि हम बात कर रहे हैं बैकग्राउंड लाइट की, अभी हम उस लाइट की बात ही नहीं कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ी, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द लाइट दैट इज ड्यू टू द एम्बियंस on a particular object. When such illumination is uniform from all direction, the illumination is called diffuse illumination. As I told you that ambient light is a non-directional diffuse light, तो वही बात ये कह रहा है कि when such illumination is uniform, ये जो illumination हमारा किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है ये यूनिफॉर्म होगा हर एक डायरेक्शन में, इसको हम डिफ्यूज इल्यूमिनेशन कहते हैं। डिफ्यूज इल्यूमिनेशन इज बेसिकली अ बैकग्राउंड लाइट इन अ सीन व्हिच रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम वॉल्स, फ्लोर एंड सीलिंग। फ्लोर जो होगा ये थोड़ा सा सही एग्जांपल नहीं है यहाँ पर, वॉल्स एंड सीलिंग हम कह सकते हैं। फ्लोर्स पे बेसिकली आपकी लाइट जो है वो डायरेक्टली पड़ती है, ठीक है ना। तो एम्बिएंट लाइट कह दो या डिफ्यूज इल्यूमिनेशन कह दो, एम्बिएंट लाइट की वजह से डिफ्यूज इल्यूमिनेशन का इफेक्ट आपको दिखाई पड़ता है। ओके, मॉडलिंग एम्बिएंट लाइट और डिफ्यूज इल्यूमिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस ओरिएंटेशन एंड व्यूइंग डायरेक्शन। देखिए एम्बिएंट लाइट का जो असर होता है एम्बिएंट लाइट पे दो चीजों का असर नहीं पड़ता, एक तो सरफेस ओरिएंटेशन, दैट मींस आपके रूम के अंदर जो भी चीजें हैं वो किस डायरेक्शन में किस प्लेसमेंट के साथ रखी गई हैं, दैट डजंट मैटर, एंड आल्सो द व्यूइंग डायरेक्शन, दैट from what direction you are looking at a particular object. So ambient light is just about background light. It doesn't depend on the direction of the where, it doesn't depend upon the direction of the surface or surface orientation, but it does depend upon the
type of surface. Okay, that's all about the ambient light. Next is diffuse reflection. Diffuse reflection, the second point is diffuse reflection. Assume a point light source whose rays emanate uniformly in all direction from a single point. नाउ बात हम करते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की, और अब एम्बिएंट लाइट में हम बात कर रहे थे कि जो लाइट है वो डायरेक्ट लाइट सोर्स से नहीं पड़ रही है, बट नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ कंपोनेंट दैट वी वुड कंसीडर, बिकॉज अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के इल्यूमिनेशन की बात करें, किसी सरफेस के इल्यूमिनेशन की बात कर रहे हैं, तो हमने एक फैक्टर कंसीडर कर लिया कि किस इन्वायरमेंट में वो सरफेस रखा गया है, तो उस इन्वायरमेंट की वजह से उस पर जो इंटेंसिटी पड़ रही है उसको हमने कैलकुलेट किया IAMB से। तो वो हमने बता दिया कि वो IA दैट मींस एम्बिएंट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, जो कि थ्रू आउट द एनवायरमेंट सबके लिए सेम है, थ्रू आउट द एम्बिएंट सबके लिए सेम है, और K पे डिपेंड करता है जो कि आपका एम्बिएंट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं IAMBs। नाउ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होती है, ये जब हम बात कर रहे हैं कि किसी लाइट सोर्स से डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट पे या सरफेस पे लाइट पड़ रही है, तो उसके इफेक्ट को हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नाउ यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, assume a point light source whose rays emanate uniformly in all direction from a single point. Here we are talking about the point light source. Light sources can be categorized in two categories. First one would be a point light source, and second would be a distributed light source. Point light source, that means a light coming from a single point, and distributed, that means light coming from a multiple in a distributed fashion. For example, point light source का example आपका हो गया sun. Okay, तो जो हमारा sun होता है उससे जो light होती है वो equally आपको मिल रही होती है uniformly. It whose rays emanate uniformly in all direction from a single point, है ना? तो sun से आपकी हर direction पे equal amount of uniform lights आपकी जो होती है dissipate होती है हर एक direction में, ठीक है? The object's brightness varies from one place to another depending upon the direction of the light source. कि पहले क्या था आपका उसमें एम्बिएंट लाइट में हमारा डायरेक्शन ऑफ लाइट सोर्स पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सर्विस ओरिएंटेशन पे कुछ नहीं फर्क पड़ता, व्यूइंग डायरेक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो फर्क पड़ता है वो सरफेस की प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ता है कि किस टाइप के सरफेस की बात की जा रही है, ठीक है? यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस है या इल्यूमिनेशन या शेडिंग है, दैट डिपेंड्स on the direction of light source and also distance of the light source to some extent. So distance को तो अभी हम डिस्कस नहीं करते। डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप किसी, ये बहुत ही एक नेचुरल फिनोमेना है कि किसी लाइट सोर्स के आप जितना पास होंगे उतनी ज्यादा आपको इल्यूमिनेशन ज्यादा दिखाई पड़ेगी, और जितना ज्यादा दूर होते जाएंगे उतनी वो इंटेंसिटी जो होती है वो कम होती जाएगी। सो दैट इज द डिफरेंट कंसेप्ट। इंटेंसिटी एटेन्यूएशन का कंसेप्ट होता है, दैट इज नॉट पॉइंट ऑफ कंसर्न हियर। The point of concern here is the direction of light source. So light कहाँ से आ रही है, ठीक है, किस डायरेक्शन से आ रही है, ये यहाँ पे डिपेंड करता है। अब ये सब पढ़ाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला फिगर। तो बेसिकली जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है ना, वहां पर हम ये कुछ मैथमेटिकल कंसीडरेशन लेते हैं, दैट दिस इज आवर सरफेस। सरफेस किसी भी टाइप का हो सकता है, यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर सरफेस लिया हुआ है। ये S जो है ना, ये हमारा है लाइट कमिंग फ्रॉम द लाइट सोर्स, है ना? तो इसकी डायरेक्शन पे यहाँ पे बेसिकली 3 वेक्टर्स की बात हो रही है, मैंने एरो नहीं लगाया, बट देयर आर 3 वेक्टर्स दैट कम्स इनटू द प्ले व्हेन वी टॉक अबाउट द इल्यूमिनेशन मॉडल। फर्स्ट इज दिस S, जिसको हम कहते हैं कि लाइट जो इंसिडेंट हो रही है, लाइट सोर्स का जो डायरेक्शन है वो हो गया डायरेक्शन ऑफ लाइट सोर्स। N इज द नॉर्मल टू द सरफेस, दैट मींस कि सरफेस नॉर्मल की बात हो रही है, और V जो हो गया व्यूइंग डायरेक्शन। अब अगर आप इसे 3D में इमेजिन करिए तो व्यूइंग डायरेक्शन तो कहीं भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको डिजाइन ऐसे करके दिखाया कि दीज आर इनलाइन इन अ प्लेन, बट प्रैक्टिकली जनरली दीज आर नॉट इनलाइन। ओके, सो इल्यूमिनेशन मॉडल जो होता है ना, वो डिपेंड करता है द एंगल्स बिटवीन द नॉर्मल सरफेस एंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइट सोर्स एंड द व्यूइंग डायरेक्शन। तो अलग अलग मॉडल्स पे अलग अलग सिनेरियो का फर्क पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि
व्यूइंग डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो फर्क पड़ता है वो लाइट सोर्स के डायरेक्शन का पड़ता है ना। तो इन केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता क्या है कि यहाँ पर एक बात तो आप समझ लीजिए कि एक यहाँ पर ऐसा लाइट सोर्स होगा जो कि यूनिफॉर्मली लाइट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्ट सोर्स, और इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होता है वो डिफ्यूज सर्फेसिस के थ्रू ही हमें मिल सकता है। दैट मीन्स डिफ्यूज सर्फेसिस कैन रिफ्लेक्ट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस, ओके। तो जो डिफ्यूज सर्फेसिस होते हैं वो जो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं उसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, और ऐसे सरफेस को हम लंबर्टियन सरफेस भी कहते हैं। तो वी कैन कॉल इट डिफ्यूजन सरफेस और लंबर्टियन सरफेसेस, एंड दीज आर दोज सरफेसेस दैट प्रोड्यूस द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये वो सरफेसेस होते हैं जिनसे जो ब्राइटनेस होगी ना वो आपकी इक्वल होगी सारे डायरेक्शन में। These surfaces appear equally bright from all viewing angles because they reflect light with equal intensity in all directions. क्या बताया मैंने अभी कि क्योंकि ये लाइट जो होगी वो यूनिफॉर्मली जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, ओके। इसीलिए ये किसी भी एंगल से देखो आप उन्हें इक्वली ब्राइट दिखाई पड़ते है ना। तो व्यूइंग एंगल यहाँ पर मैटर नहीं करता, इसीलिए यहाँ पर ये जो तीन वेक्टर्स हैं, तो एक यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर और लाइन डायरेक्शन ऑफ लाइट जो है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है। यूजुअली बी और एन के बीच का जो एंगल होता है वो फाई होता है, बट फाई यहाँ पे मैंने हटा दिया है बिकॉज द व्यूइंग डायरेक्शन डजंट डिपेंड ऑन doesn't affect anything here, because these type of surfaces looks equally bright, equally illuminated, equally shaded from every direction. It doesn't depend on the viewing direction, but it does depend upon the direction of the light source. So there an angle between normal surface and s, इसको हम थीटा कहते हैं। इस थीटा के बेसिस पे हम जो डिफ्यूज सरफेस है उनको मॉडल कर सकते हैं। इसके क्या एग्जांपल होते हैं लंबर्टियन सरफेसेस के, यानी कि ऐसे कौन से सरफेसेस हैं जिन्हें किसी भी डायरेक्शन पे देखो तो दे विल बी illuminated equally. एग्जांपल इसका डल मैट सरफेसेस, फॉर एग्जांपल कोई भी फ्लैट सरफेस, फॉर एग्जांपल टेबल्स है, ठीक है। अभी हम टेक्सचर टेबल की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल प्लेन फ्लैट सरफेसेस हो गई, मैट सरफेसेस हो गई, स्नो हो गया, या सबसे अच्छा एग्जांपल आपका मूवी थिएटर या प्रोजेक्शन। जैसमीन अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो आप किसी भी सीट पे देखो आपको सेम इल्यूमिनेशन एक्सपीरियंस होता है। ऑब्वियसली अगर आप फ्रंट रो पे देखोगे तो ज्यादा इल्यूमिनेशन आपको एक्सपीरियंस होगा, पीछे देखोगे तो कम होगा, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, ओके। सो ये कोई आपकी डिफ्यूज सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप कहीं भी बैठोगे आपको इल्यूमिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा। ऐसे ही सेम आपका प्रोजेक्शन स्क्रीन के साथ भी होता है। स्नो या ऐसे कुछ सरफेसेस होते हैं जिनसे कि इक्वल अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस जो होती है वो दिखाई पड़ती है किसी भी डायरेक्शन से। कुछ ऐसे सरफेसेस भी होते हैं जहां किसी एक पॉइंट पे आपको इल्यूमिनेशन ज्यादा दिखेगा, किसी पॉइंट पे आपको इल्यूमिनेशन कम दिखेगा। जैसे कि शाइनी सरफेसेस जो होंगे, तो शाइनी सरफेसेस में क्या होता है, शाइनी सरफेसेस में एक सर्टेन पॉइंट पे आपको एकदम व्हाइट लाइट दिखेगी क्योंकि सब कुछ आपको वहीं पर एकदम पॉइंटेड सा दिखेगा, या बहुत ही ज्यादा ब्राइटनेस दिख रही होगी, है ना। और बाकी जगह पर वो इफेक्ट कम होगा। जैसे अभी मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल दिया, और अगर आप किसी शाइनिंग एप्पल को देख रहे हो, उस पर लाइट पड़ रही है तो उस पर एक सर्टेन पोर्शन आपको बहुत ज्यादा इल्यूमिनेटेड दिखेगा बाकी पोर्शंस के कंपैरिजन में। तो दीज आर द एग्जांपल्स वेयर द लाइट कमिंग फ्रॉम एवरी डायरेक्शन और द रिफ्लेक्शन फ्रॉम एवरी डायरेक्शन इज नॉट सेम, ठीक है। वो आपका स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता है, बट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आर दोस reflections where the objects appear equally bright from all the directions, okay. These surfaces appear equally bright from all viewing angles because they reflect light with equal intensity in all direction. मैंने बताई दिया आपको। अब अगर आपने जैसे वहां पे मॉडल किया था आई
एम्बियंट को। तो यहाँ पर अगर आप डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को मॉडल करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका जो इक्वेशन है वो है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई एस के डी मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। So basically cos theta क्या है? Theta is the angle between the light source and the normal surface. So I told you that it depends upon the direction of the light source and the surface which we are trying to find the illumination. So the normal to the surface, the angle between the normal of the surface, normal to the surface, and the angle between the direction of the light source. Okay. इसके बीच का जो एंगल है इस पर डिपेंड करेगा। ये cos थीटा है जिसकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में हम वेरी करा सकते हैं। आई एस बेसिकली क्या है? आई एस यहाँ पर हो गया इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट लाइट सोर्स। पॉइंट लाइट सोर्स का मतलब है हम सिंगल लाइट सोर्स की बात कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से आ रही है। तो एम्बिएंट लाइट के केस में क्या था? आई ए का मतलब क्या है? वहां पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट सरफेसेस से जो रिफ्लेक्शन आ रहा था, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं आई ए। यहाँ पर बात हो रही है एक सिंगल पॉइंट लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही है, तो इसको हमने कह दिया आई एस। ठीक है, के डी यानी कि ये हमारा कोफिशिएंट है, दिस इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। Ka was ambient reflection coefficient, this is diffuse reflection coefficient. तो Kd क्या हो गया आपका? That light incident upon the diffuse surface and light reflected back by the diffuse surface, है ना। तो जिस भी सरफेस की बात कर रहे हैं उस पर जितनी लाइट इंसिडेंट पड़ी है उसको हमने IS बोल दिया है, और जितनी लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है वापस उसको हम IB कह रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब हो गया आपका ये, इसका जो रेशियो है इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कह रहे हैं। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे ये डिपेंड करेगा। Unless you are in a perfect dark room used for developing films, a more realistic illumination model. Now, I have told you that illumination model depends upon the three components. First is ambient light, second is diffuse reflection, third one is specular reflection. So far we have studied the ambient light and the diffuse reflection. So if we make an illumination model on the basis of what knowledge we have till now, then we can add both these equations, Ia multiplied by K plus this diffuse reflection. This represents the I ambience, this represents the I diffusion. Okay. Thank you for today. That's all for today. Thank you.